Today we will discuss Hershey-Chase experiment. Two scientists, that is Alfred Hershey and Martha Chase. Alfred Hershey and Martha Chase. Worked with viruses that is bacteriophages. Viruses that is bacteriophages. Bacteriophages means viruses which infect bacteria. So these two scientists, Alfred Hershey and Martha Chase, worked with viruses. There are three types of viruses: plant viruses, animal viruses, and bacteriophages. They work with bacteriophages. Bacteriophages means that viruses which infect bacteria. Okay. So bacteriophages means that viruses contain, number one, protein coat and genetic material. Viruses are made up of protein coat and genetic material. Protein coat, that is capsid, which protect their genetic material, and genetic material is DNA. So they used two radioactive elements in their experiment, and year of their experiment is 1952. So they use two types of radioactive elements for their experiment, that is radioactive phosphorus and another is radioactive sulfur. They used radioactive phosphorus and radioactive sulfur. Okay, radioactive phosphorus, that is 32P, and radioactive sulfur, that is 35S. Okay, then they prepared two different mediums. For what? For viruses, for growth of viruses. So medium number 1 and another, that is medium 2. Okay, they used radioactive phosphorus, that is 32P, in one medium, and they use radioactive phosphorus, that is 35S, in another medium. Radioactive sulfur, this is radioactive phosphorus and another is radioactive sulfur. Okay, it is radioactive sulfur. So they used radioactive phosphorus in the medium for some viruses and radioactive sulfur in the medium for some viruses. Means they
prepared two different mediums. In one medium they used radioactive phosphorus, in another medium they used radioactive sulfur. They grew some viruses on the medium containing radioactive phosphorus, and they grew some viruses on the medium containing radioactive sulfur. Okay, कुछ वायरसेस को उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, कुछ वायरसेस को उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर था. मतलब इन्होंने दो अलग अलग मीडियम बनाए, वायरसेस के दो अलग अलग ग्रुप बनाए. आधे वायरसेस को इस मीडियम में ग्रो किया जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, आधे वायरसेस को इस मीडियम में ग्रो किया जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर था. अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वायरसेस दैट ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग radioactive phosphorus, viruses that grown in the medium containing radioactive phosphorus was radioactive. जिन वायरसेस को ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया था जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, समझ में आ रहा? जिन वायरसेस को ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया था जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, ऐसे वायरसेस का जो डीएनए है, ऐसे वायरसेस का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया. डीएनए क्या हो गया? रेडियो एक्टिव. जिन वायरसेस को ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया था जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर था, ऐसे वायरसेस का जो प्रोटीन कैप्सिड है, दैट प्रोटीन कैप्सिड वाज रेडियो एक्टिव. Viruses grown in the medium containing radioactive phosphorus contained radioactive DNA, and viruses that grown on the medium containing radioactive sulfur contained radioactive protein. Why? Because DNA contain phosphorus, DNA contain phosphorus, and here protein contain sulfur. जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो किया गया था, उन वायरसेस का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में होता है. इसीलिए इन वायरसेस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि प्रोटीन में फॉस्फोरस होता ही नहीं है, प्रोटीन में सल्फर होता है. और जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया गया था, उन वायरसेस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है. लेकिन इन वायरसेस का डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि सल्फर डीएनए में नहीं होता है. तो देखिए, मीडियम नंबर 1 विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मीडियम नंबर 2 विथ रेडियो एक्टिव सल्फर. So viruses in this medium contain radioactive DNA, and viruses in this medium contain radioactive protein, because phosphorus is the component of DNA and sulfur is the component of protein. Okay, next step. Then they allowed the viruses to infect bacteria. फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने ये जो वायरसेस है, जिन वायरसेस में रेडियो एक्टिव डीएनए है, जिन वायरसेस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, ऐसे वायरसेस को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया. समझ में आया? ऐसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया
ऐसे मीडियम में ग्रो हो रहे जिन मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस नहीं है। समझ में आया ना? कौन से बैक्टीरिया? बैक्टीरिया लिए गए एस्चेरिशिया कोलाई। देखिए, तो ये बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये बैक्टीरियोफेज के डायग्राम पहले बना देते हैं हम लोग। ये है बैक्टीरियोफेज। देखिए, सिंपल सी डायग्राम है। दिस इज बैक्टीरियोफेज। छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज बेस प्लेट एंड दीज आर टेल फाइबर्स। दीज आर टेल फाइबर्स एंड इसके अंदर है डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। दिस इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। दूसरे इसमें देखिए, दूसरा भी ये यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये वाला दूसरा बैक्टीरियोफेज, मतलब ये दूसरे ग्रुप के बैक्टीरियोफेज है। अब इनका ये दिस इज बेस प्लेट एंड दीज आर व्हाट आर दीज? दीज आर टेल फाइबर्स। दीज आर टेल फाइबर्स। इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। ये देखिए, दिस इज डीएनए। कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए। ये दोनों भी बैक्टीरियोफेज। इनको लेबल कर देंगे। देखिए, प्रोटीन कोट, यहाँ मैंने लिखा प्रोटीन कैप्सिड। प्रोटीन कैप्सिड। और यहाँ मैंने लेबल दे दिया डीएनए। यहाँ देखिए, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सिड। रेडियो एक्टिव सल्फर ने प्रोटीन कैप्सिड को लेबल किया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन को ही लेबल करेगा, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो डीएनए है, इसको किसने लेबल किया? रेडियो एक्टिव, बोलिए, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए। ओके। और ये दोनों भी क्या है? these are bacteriophages. So these bacteriophages, which are grown on the medium with radioactive sulfur and radioactive phosphorus respectively, allowed to infect bacteria, that is Escherichia coli, E. coli bacteria. So these are E. coli bacteria. So this is E. coli bacteria. ओके, थोड़ा छोटा ड्रॉ करेंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया, इसमें कंसेप्ट क्या है कि जब भी ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करेगा। समझ में आया? तो पता ही चलेगा। अब इसमें दो ही चीज़ें हैं, प्रोटीन एंड डीएनए। तो ये बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट करेगा? कौन सा मटेरियल इसके अंदर जेनेटिक इंसर्ट करेगा? जो मटेरियल ये वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करेगा, वो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो दोनों को भी लेबल कर दिया है, प्रोटीन को भी लेबल कर दिया है और डीएनए को भी लेबल कर दिया है। डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल किया है, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया गया। समझ में नहीं आ रहा आपको? ये देखिए, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, अब इसकी स्टेज है, ये पहली स्टेज है इन्फेक्शन। पहली स्टेज कौन सी है? इन्फेक्शन। ये देखिए, ये बैक्टीरियोफेज, दिस इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट कर दिया।
बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट कर दिया। ये सब जो चल रहा ये ऐसे मीडियम में चल रहा जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इनमें रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। ये पहली स्टेप हो गई इन्फेक्शन, इट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन दिस इज इन्फेक्शन। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं इन्फेक्शन। ओके, फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन। यहाँ क्या हो गया कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इन बैक्टीरिया का, वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है, देखिए इन्फेक्शन हो गया। इन वायरसेस ने, मतलब बैक्टीरियोफेजेस ने बैक्टीरिया को, कौन सा बैक्टीरिया है ये, दिस बैक्टीरिया इज ई कोलाई बैक्टीरिया, दैट इज इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया। जब इस वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो देखिए वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे जा रहा बैक्टीरियल सेल के अंदर, समझ में आ रहा। और इसमें ऐसे दिखाएंगे ये जो जेनेटिक मटेरियल है, देखिए जब इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को, तो इसका जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर पास होता है, समझ में आया। और बैक्टीरियल सेल के अंदर जो खुद बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ये देखिए ये जेनेटिक मटेरियल है ना बेटा। ये देखिए ये जब इसने इन्फेक्ट किया तो जेनेटिक मटेरियल किस में आ गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसकी दूसरी स्टेप है ब्लेंडिंग। सेकंड स्टेप क्या है, ब्लेंडिंग। तो जैसे ही इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, as the infection is proceeded, these viral coats were removed by centrifugation। जो भी जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया और बाकी का जो भी कोट है, इसका प्रोटीन कैप्सिड है, वो बाहर बचा, वो नहीं गया अंदर, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर गया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या किया गया कि ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, ये प्रोटीन कैप्सिड सेपरेट किए गए, बैक्टीरियल सेल से रिमूव किए गए, समझ में आया ना। सेंट्रीफ्यूगेशन से ये रिमूव किए, क्या रिमूव किए, ये प्रोटीन कैप्सिड। लेकिन डायग्राम में देखेंगे हम, डायग्राम पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो ये फिर ये बैक्टीरियल सेल दैट इज ई कोलाई, यहाँ भी हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज बैक्टीरियल सेल ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल। एंड ये देखिए इसमें जो सुपरनेटेंट है दैट इज प्रोटीन कोट, प्रोटीन कैप्सिड ये बाहर है ना, सेपरेट किया गया, प्रोटीन कैप्सिड को अलग किया गया, रिमूव किया गया, है ना। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ है, जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एंड देयर प्रोटीन कैप्सिड और प्रोटीन कोट्स रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैप्सिड विच रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल and genetic material of bacteriophage inserted inside the bacterial cell. Then by the centrifugation technique these protein capsids removed, प्रोटीन कैप्सिड्स वेयर रिमूव, इनको रिमूव किया गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड डायग्राम नंबर थर्ड, एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन।
स्टेप नंबर 3 क्या है इस एक्सपेरिमेंट की? सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 का लेबल है दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो क्या मिला? जिन बैक्टीरिया को ऐसे वायरसेस ने इन्फेक्ट किया था, जो वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो हुए थे। समझ में आया आपको? ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया को इन वायरसेस ने, मतलब इन बैक्टीरियोफेजेस ने इन्फेक्ट किया। ये जो वायरसेस है फिर ये जो बैक्टीरियोफेजेस है, ये कौन से मीडियम में ग्रो हुए थे? ऐसे मीडियम में ग्रो हुए थे जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। समझ में आया? तो यहाँ हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? नो रेडियो एक्टिव सल्फर, नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर मिला नहीं। इसका मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर बैक्टीरियल सेल के अंदर गया नहीं। इसका मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन में था, तो प्रोटीन बाहर था। मतलब प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। प्लस और क्या है? तो इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर इन सुपरनटेंट। ये जो सुपरनटेंट है, ये देखिए यहाँ मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो सुपरनटेंट है जो बाहर ही था, प्रोटीन कैप्सिड, इसमें इनको सेपरेट किया गया था, इनको रिमूव किया गया था रेडियो एक्टिव सेंट्रीफ्यूगेशन से इनको सेपरेट किया गया था। तो ये जो सुपरनटेंट है, इनमें रेडियो एक्टिव सल्फर पाया गया। इसका मतलब ये सुपरनटेंट है, ये अंदर एंटर ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो सुपरनटेंट है, ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन कैप्सिड है तो इसमें प्रोटीन ही है ना। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर सल्फर नहीं मिला। सल्फर कहाँ था? सल्फर प्रोटीन में था, मतलब कैप्सिड में था। कैप्सिड में सल्फर मिला, समझ में आया ना। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर सल्फर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर गया ही नहीं। मतलब प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। यहाँ क्या हुआ? यहाँ थोड़ा अलग है। हियर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस in cell plus no radioactive phosphorus in supernatant. No radioactive phosphorus in supernatant. ये जो सुपरनटेंट है, इन सुपरनटेंट में रेडियो एक्टिव सल्फर मिला, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं मिला। अब ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया को ऐसे वायरसेस ने इन्फेक्ट किया था जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो हुए थे। समझ में आया? ये जो वायरसेस है, ये वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो हुए थे, और ये वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो हुए थे। तो इसमें ये वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुए थे। फॉस्फोरस डीएनए में होता है, तो इसीलिए जो भी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ चला गया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस चला गया डीएनए में।
तो जब जैसे ही ये वायरसेस ने ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ई कोलाई बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया है ये? ई कोलाई बैक्टीरिया। इस कोलाई का सी स्मॉल चाहिए। जैसे ही इस वायरसेस ने, जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो हुए थे, इस वायरसेस ने जैसे ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग हुआ, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या मिलता है? तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, लेकिन इस सुपर नटेंट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था कहाँ? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए में था। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए में था। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए में था, है ना? इसको बाहर जाना है बेटा, वो दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ मिला बेटा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इस इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मिला। और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था कहाँ? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इस वायरसेस के डीएनए में था। इसका मतलब वायरसेस का जो डीएनए है, वो वायरसेस का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हुआ, लेकिन इस प्रोटीन जो भी बाहर बचा था इन्फेक्शन के बाद, प्रोटीन कैप्सिड, उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं मिला। इसका मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो प्रोटीन में नहीं था। समझ में आया ना? मतलब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर गया ही नहीं। या फिर हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, सम टाइम आफ्टर इन्फेक्शन रेडियो एक्टिविटी इज टेस्टेड एंड रेडियो एक्टिव phosphorus is found, radioactive phosphorus found inside the bacterial cell, but no radioactive sulfur found inside the bacterial cell. Radioactive sulfur present in the supernatant, and radioactive sulfur present in the supernatant, and radioactive phosphorus present in the bacterial cell. In this way, it is clearly proved that DNA is the genetic material. DNA is the genetic material.